يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آج جو ہے ہم تھوڑا سا پچھلا جو ہم نے پڑھا ہے اب تک تجوید کے معنی کیا ہے، یعنی ہم قرآن کے حروف کے مخارج صفات و تلاوت کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے اگر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ تجویدی علم تجوید کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کی اگر ہم تجوید کا خیال نہ کریں تو ہم سے دو طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ایک لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی جو ہے بہت ہی مطلب ایسی غلطی ہے جو کہ گناہ کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہم قرآن کے معنی بدل دیتے ہیں، اور لحن خفی مکروہ غلطی ہے، اس سے معنی تو نہیں بدلتے لیکن قرآن کی خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے۔ اچھا، اس کے قرآن کے ہم نے حقوق پڑھے تھے کہ 5 حقوق ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے ایمان لانا، پھر اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کی سلائیڈ بتا دیے، مخارج پڑھے تھے ہم نے۔ تو مخارج جو ہے دو مخرج کی جمع ہے یعنی، اور اس کی جو اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ 2 طرح کے مخارج ہوتے ہیں، ایک مقدرہ ایک محققہ۔ مقدرہ میں ہمیں ایگزیکٹ جگہ نہیں پتہ ہوتی، ایک پورا ایریا ہے جو کہ مخرج ہے، جیسے الخیشوم ہے غنہ کا مخرج ہے، الجوف جو ہے حروف مدہ کا مخرج ہے، اور مخارج محققہ جو ہیں اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ حرف کس جگہ سے نکل رہا ہے، اور یہ 3 ہیں۔ ہم نے الحمدللہ پچھلی کلاس میں سارے کمپلیٹ کر لیے، یعنی الحلق پڑھا، اللسان پڑھا اور الشفتان پڑھا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو ہے لام نون اور را پڑھا تھا، یعنی طرف اللسان، یہ آخری مخرج تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لام نون اور را کہاں سے ادا ہوتے ہیں، کچھ یاد ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا کہ ہماری زبان کے جو اطراف ہیں 4 دانتوں پہ لگتے ہیں نا، درس، دواحق، انیاب، رباعی اور ثنایا۔ جب 4 دانتوں پہ ہماری زبان کے اطراف لگیں گے تو لام ادا ہوگا، 3 پہ لگیں گے یعنی انیاب، رباعی اور ثنایا تو اس پہ نون ادا ہوگا، اور را کے لیے صرف 2 سامنے کے دانت ہیں یعنی رباعی اور ثنایا، اور یہ زبان کی پشت جب ٹکراتی ہے مسوروں پہ اور تو اس طرح سے اس میں تھوڑی سی تقریر کہتے ہیں، جو آواز ایک وائبریشن سے ہوتی ہے، ار زیادہ نہیں کرنی ہے، صرف ایک دفعہ اس کی آواز کو جو ہے اس میں وائبریٹ کرے، ار تو یہ جو ہے زبان کی پشت جب ہم مسوروں پہ لگاتے ہیں ان دونوں دانتوں کے تو را ادا ہوتی ہے۔ تو یہ آخری مخرج تھا۔ پھر ہم نے مدود پڑھی تھی، تو ہم نے مد متصل پڑھ لی تھی، مد منفصل پڑھ لی تھی، مد عارض پڑھ لی تھی، مد لازم ہم نے کلمی مثقل اور کلمی مخفف پڑھی تھی۔ اگلی سلائیڈ میں چاروں مد لازم کی جو ہے وہ نام لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں، مد لازم، کلمی مثقل، مد لازم، کلمی مخفف۔ یہ اگر ہم کلاس جو ہماری چوتھی کلاس تھی میرا خیال ہے اس میں ہم نے یہ پہلی 2 جو ہے یہ ہم نے پڑھی تھی۔ کلمی مثقل کیا، کلمی کا مطلب ہوتا ہے لفظ، ہے نا، کلمی کا مطلب ہے لفظ، ایک لفظ ہو اس میں حرف مدہ ہو اور اس کے بعد تشدید آ جائے تو یہ کلمی مثقل بن جاتا ہے۔ اس کی مثال بہت آسان تھی، جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، با کیا ہے، حرف السلام مدہ۔ علیکم وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ دیکھیں وَلَضَّالِّينَ، با کیا ہے، ضال الزبر الف مدہ ہے، اس کے بعد لام پہ کیا آ گئی، تشدید آ گئی، تو یہ
एक लफ्ज है ना, दौलीन एक लफ्ज है, तो हरफ मद्दा के बाद तशदीद आ गया तो ये मुसक्कल हो गया, तशदीद की वजह वजह से ये लफ्ज मुसक्कल हो गया, भारी हो गया। और इस बॉ को हम कितने काउंट्स खींचेंगे? 6 काउंट्स खींचेंगे। ठीक, तो ये मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, यानी एक लफ्ज में बनने वाला भारी मद, एक लफ्ज में बनने वाली। और इसी तरह जब अलिफ मद्दा या कोई भी हरफ मद्दा के बाद साकिन आ जाए तो मुखफ़फ़ यानी हल्की मद बनती है, हल्की, तशदीद की वजह से भारी बनेगी और साकिन की वजह से हल्की बनेगी। और ये सिर्फ एक लफ्ज है पूरा कुरान में, बाकी जो बनती हैं वो तशदीद वाली बनती हैं। साकिन के साथ एक ही दफा, एक ही लफ्ज है और एक ही सूरत में 2 दफा आया है सूरह यूनुस में। ठीक है, यह है आल आना, आ क्योंकि अलिफ मद्दा बन रहा है और उसके बाद लाम पे साकिन है, तो आ को हम 6 काउंट्स खींचेंगे और लाम पे जाके रुक जाएंगे, आल आना। ठीक, तो ये कलमी मुखफ़फ़ होगी। और मुशक्कल की बहुत सारी मिसालें हैं, इसमें 3 4 लिखी हुई हैं, इसके अलावा पूरा चार्ट था जो क्लास में हमने शेयर किया था। अल्हाक़ा, हा के अलिफ मद्दा है, उसमें काफ पे तशदीद हो गई तो हम उसको हा को 6 काउंट्स खींचेंगे, अल्हाक़ा। ठीक है, इसी तरह ता मुरूनी, रू जो है वाव मद्दा है और नून पे तशदीद है, तो रू को वाव मद्दा को हम 6 काउंट्स खींचेंगे। कोई पढ़ के बताए मुझे, कोई पढ़ेंगी? अल्हाक़ फिर से। तअमुरूनी। दोबारा पढ़ो। हाँ दोबारा पढ़े, आवाज नहीं आ रही। अल अल्हाक़ हम्म, तअमुरूनी। नून तशदीद हाँ, वाला है ना, एक मिनट, नून पे तशदीद है ना, तो तशदीद वाला नून कितने काउंट्स करते हैं? 6 काउंट जाएगा। नहीं, ये तो रू जाएगा 6 काउंट्स। ठीक है, नून थ्री। मुशद्दद हाँ, नून मुशद्दद मीम मुशद्दद 3 काउंट्स। ठीक है, रू को आपने 6 काउंट्स खींचा और नून पे 3 काउंट का गुन्ना किया। आप पढ़े, तअमुरूनी। रूनी, कैसे? तमुरूनी। हम्म, तअमुरूनी। तो आवाज बिल्कुल आगे कट रही है, हम सबके पास मसला है। हाँ, कोई और हाजू का पढ़े? आजूका। नहीं, हा जो है, हाँ सही है, पढ़े फिर से एक दफा। आ आजूका। हाँ, जू को उतना नहीं खींचे, हाजू का। आजूका। हाँ, जीम पे जमाओ क्योंकि तशदीद है ना, तो जमाओ के साथ, हाजू का। हा आवाज गायब, आवाज नहीं आ रही। वो मेरे पास नेटवर्क हाँ मुझे वही लग रहा है। चलें, मैं ठीक है। पढ़ूं? हाँ पढ़िए प्लीज। बाहर हूँ यूनिवर्सिटी। आजू का बिल्कुल सही, उससे पहले वाला। तामुरूनी ना अच्छा, ता जो है ये, ठीक है। हाँ साकिन है ना, हमजा साकिन हो गया तो झटके से पढ़ेंगे, ता मु रू, 6 काउंट, रू कितना 6 काउंट क्योंकि वाव मद्दा और उसके बाद तशदीद है, तो इस रू को हम 6 काउंट खींचेंगे। ता मुरू, फिर नून मुशद्दद है तो 3 काउंट का, इस पर गुन्ना भी करना है। तो हमने 6 + 3, 3 काउंट के लिए सांस अपनी जो है जमा करके रखनी है। तमुरून, पढ़े, तामुरूनी सही। और ऊपर वाला है अल्हाक़ा, अलहाका हा बारीक है, हाक़ा।
الحاقة काफ जरा मोटा पड़े। हाक़ा। الحاقة हाक़ा। حاقة सही है। तो ये हमारे हो गए थे कलमी मुखफ़फ़ और कलमी मुसक्कल। ठीक। अब हम कलमी की जगह हर्फी पढ़ेंगे। हर्फ का मतलब जो हमने हुरूफुल हिजा पढ़े ना अरबी के, कितने हैं? 29। तो ये जो अलिफ बा ता सा है ये हुरूफुल हिजा है। अब इन हुरूफ के अंदर जो मद बन रही है ना उसको हर्फी मुखफ़फ़ और हर्फी मुसक्कल कहते हैं। ठीक है। अब ये हरूफ किस लिए काम आते थे? हमने पहली क्लास में ये बात की थी कि अभी तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि मत क्यों है बनी हुई है हिज्जों में, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो हमें इसकी वजह पता चलेगी। तो अगली स्लाइड अगर हम देखें तो अब देखते हैं कि देखें हरूफ हिजा हमारे कितने हैं? अलिफ बा ता कितने हैं अरबी के? 29 है। अच्छा, हुरूफ मुक़त्तआत जो है ना इनमें से उन 29 में से 14 हैं जो कि कुरान में आए हैं। ठीक है। अच्छा, और ये 14 जो हरूफ से हुरूफ मुक़त्तआत बने हैं ये 29 सूरतें उससे शुरू हुई हैं हमारी। जैसे है ना सूरह बकरा है अलिफ लाम मीम, सूरह आले इमरान है अलिफ लाम मीम, इस तरह से सूरह मरियम है अलिफ लाम मीम आइन सीन क़ाफ। तो ये जो है 29 सूरतें हैं जो कि इन हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू हुई हैं। और हुरूफ मुक़त्तआत कौन से हैं? 14 पूरे तो नहीं है, 29 तो पूरे हुरूफ मुक़त्तआत नहीं बने हमारे कुरान में। ये वाले नीचे जो लिखे हैं ना अलिफ लाम मीम सॉद रा का हा या आइन ता सीन हा क़ाफ नून, ये बने हैं जो कि हुरूफ मुक़त्तआत बने हैं। ठीक है। और ये टोटल हमारी कुरान में कितनी सूरतें? 114 हैं। वो 114 में से सिर्फ 29 सूरतें हैं जो इन हरूफ से हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू हुई हैं। मुक़त्तआत का क्या मतलब है? कि काट काट के पढ़ना, एक साथ नहीं पढ़ना। अब अलिफ लाम मीम अगर हम मिला के पढ़े तो क्या बनेगा? अलम बन जाएगा ना। लेकिन हमने अलम नहीं पढ़ना है, अलिफ को अलग पढ़ना है, लाम को अलग पढ़ना है, मीम को अलग पढ़ना है। इन्हें काट के पढ़ना है, कता करना है। जैसे कहते हैं कता ताल्लुक कर लो, यानी ताल्लुकात को तोड़ दो, काट दो। तो ये है हुरूफ को काट के पढ़ना, एक साथ नहीं पढ़ना है। ठीक। तो इसमें जो है 4 तरह के ग्रुप्स 4 हैं। अगली स्लाइड। अच्छा हाँ चलें ये देख लेते हैं कि कौन कौन से शुरू हुए हैं। हमने अलिफ लाम मीम सॉद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा। ये मैं तेजी से पढ़ रही हूँ, ऐसे नहीं पढ़ना है इनको, इनको मत बना के पढ़ना है। कैसे बननी है वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये 14 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये 14 हुरूफ मुक़त्तआत हैं जिनसे हमारी कितनी सूरतें शुरू हुई हैं? 29 सूरतें शुरू हुई हैं। ठीक है। अलिफ लाम मीम से ही 5 सूरतें शुरू हो जाती हैं। तो ये हमें इसको किस तरह से पढ़ना है ये अब हम सीखेंगे। अगली स्लाइड देखते हैं हम। एक हर्फी इसमें देखें 3 है, सौद ऑफ और नून। ये सिर्फ एक हर्फ है। ठीक है। अच्छा फिर 2 हर्फी हैं। 2 हर्फी में कौन कौन से आ रहे हैं? ये तो हमें समझ में आ जाता है ना, एक हर्फ है ना सौद कॉफ नून, इससे सूरतें शुरू हुई हैं। सही है ना। तो ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं, सौद कॉफ नून। इसको हमने मद बना के पढ़ना होता है, खींच के पढ़ना होता है। इसके अगले उसमें हम देखेंगे कि 2 हर्फी कौन कौन से आते हैं। ये है तोहा, तोहा, तो सीन यासीन हा मीम, ये 2 हर्फी हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं अगली स्लाइड में 3 हर्फी, तो सीन मीम।
अलिफ लाम रा, अलिफ लाम। देख उसी तरह पढ़ना है जिस तरह हमने क्या पढ़ा था, कलमी मुस्तक्कल पढ़ा था ना। लाम जो है वो अलिफ मद्दा था, उसके बाद तशदीद आ गई तो लाम को 6 काउंट खींचा, फिर जो है हमने मीम का 3 काउंट का गुन्ना किया। तो ये हम इसी तरह से पढ़ेंगे, वो कवायद वही लगेंगे, लेकिन क्योंकि ये हर्फ में बन रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी चीज। इसके बाद वाली स्लाइड में हम देखते हैं कितने हर्फ के हैं। ये है 4 हर्फी। अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम सॉद, ये 2 आए हैं, ठीक है। 2 हरूफ मुक़त्ताआत हैं जिनमें 4 हरूफ अदा हुए हैं। और इसके बाद है 5 हरूफ के। का, ये 2 आए हैं, ठीक है। काफ हा या आइन सॉद हा मीम आइन सीन कॉफ, ठीक। तो अब जो है इन सबको हमने एक मिला के तो नहीं पढ़ा, सबको कता करके पढ़ा, तो ये हुरूफ मुक़त्ताआत बन गए, ठीक है। अच्छा, इनको पढ़ना कैसे है, इसको हम तोड़ते हैं, सही है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि हम इनको किस तरह से। अच्छा, ये जो है ये पूरे 29 हैं। अब आप इसको, अगर हम इसको इलाज करके देखते हैं तो देखें, अलिफ तो अलिफ है ना, अलिफ को अलिफ की तरह पढ़ेंगे। बा को कैसे पढ़ेंगे, बा अलिफ जबर बा, ठीक है, अलिफ मद्दा बन गया। ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा। अच्छा, जीम को अगर हम खोलते हैं, जीम अगर हम इसकी हिज्जे करते हैं, जी या मद्दा और मीम साकिन, जीम, ठीक है ना। जीम जो है जी या साकिन और मीम, मीम साकिन, या मद्दा और मीम साकिन। अच्छा, हमने क्या किया था जब हमने या मद्दा के बाद साकिन किया था, अल आन में, आल आन में आ जो था अलिफ मद्दा था, लाम साकिन था, तो हमने आ को कितना खींचा था, तो बताएगा। 6 काउंट खींचा था। हाँ, और फिर लाम पे जाके हमने सुकून कर दिया था, आल, ठीक है। इसी तरह जीम को अगर हम खोलें, जैसे लिखा हुआ है या मद्दा और फिर मीम साकिन, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, उसी तरह अगर वही कवायद लगाए तो। जी जो है या मद्दा हो गया ना, इसको खींचेंगे 6 काउंट, और मीम साकिन हो गया, उस पे 1 काउंट का गुन्ना कर दिया। कैसे पढ़ेंगे इसको, जी, जी, समझ आई कुछ। इसको फिर बताइएगा। अच्छा, जीम, जीम जो एक हर्फ है ना, जीम, उसको अगर हम हिज्जे करते हैं, जी कैसे लिखेंगे, जीम हम कैसे लिखेंगे खोल के, जीम या मीम लिखेंगे ना, जीम, जीम के इसके पे हिज्जे। शद होगा, या नहीं, अभी मद्दा शायद, बना। हाँ या मद्दा बना, उसके बाद मीम साकिन, जीम, सही। जी। मतलब इसमें कंफ्यूजन है कोई, जीम यानी जी जो है पढ़ने या का तरीका क्यों नहीं समझ में आया। जीम 6 काउंट हाँ, खींचेंगे, ये 2 6 काउंट काउंट, होगा। नहीं नहीं, वही मैं बता रही हूँ, ये इसमें वही कवायद लगेंगे जो कि मुसक्कल या मुखफ़फ़ बनाने वाले कवायद हम कर रहे हैं ना, कि जहाँ हुरूफ मद्दा आ गए, उसके बाद अगर साकिन या तशदीद वाला कोई हर्फ आ जाता है तो हम हर्फ मद्दा को 6 काउंट खींचेंगे, सही है। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं, यही जो जो तख्तिये वाली पढ़ी, तो हम तो ये तो हम्म, तेजी से पढ़ रहे होते हैं, तो हमें यही, इस चीज का ख्याल हाँ, रखना है कि इतने काउंट करना ही करना। इसमें नहीं करना है। ये तो हम जब हरूफ मुकत्ता, हरूफ तहज्जी पढ़ रहे अच्छा। होते हैं ना, वो तो हम तेजी जी। से पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम इसको हरफी मुसक्कल या हरफी मुखफ़फ़ बना रहे हैं, जो कि हरूफ मुकत्तात हैं हमारे, जब हम उनको पढ़ेंगे ना, तो उसमें अच्छा अच्छा। हम ये कवायद लगाएंगे। लेकिन हम अक्सर बच्चों को इस तरह से अपने मदरसे में इसीलिए ये
इस तरह से पढ़ाते थे ताकि उनको जहन में रहे। लेकिन ये जरूरी नहीं है यहाँ पे पढ़ना। लेकिन जब हम हुरूफ मुक़त्तात बनाएंगे उसमें उसको पढ़ेंगे। जैसे हम अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं सूरह बकरा से पहले, तो हम अलिफ लाम मीम तो नहीं पढ़ेंगे ना, हम उसको पढ़ेंगे अलिफ लाम। सही, तेजी में भी पढ़ रहे हैं अगर हम, तो हमें ये कायदा पूरा करना है उसमें, वरना हम उसमें कमी कर रहे हैं। हम हरफ मद्दा बनाने में या हरफ मुस्तक्कल बनाने में, मुखफ़्फ़ बनाने में हम गलती करेंगे। तो उस वक्त ख्याल रखना है कि हमने पूरा कायदा उस पे लगाना है। इन्होंने इसमें इसलिए ये पूरी वो करके बताई है ताकि हमें पता हो कि जीम को हमने क्यों खोला, खोला तो उसके अंदर क्या निकला। तो जब हमने जीम को खोला तो उसमें या मद्दा निकला और मीम साकिन निकला। जब हमने हुरूफ मुक़त्तात में उसको लगा दिया तो वहां पे हर्फ मुखफ़्फ़ या हर्फ मुस्तक़ल के तौर पे हम उसको 6 काउंट्स खींचेंगे। ठीक है। हा क्या है? अलिफ मद्दा, 2 काउंट्स। हा, 2 काउंट्स। दाल, अब दाल को खींचा खोला तो क्या निकला उसमें से? दा, दाल अल ज़बर दा और लाम साकिन। दा क्या है? हुरूफ मद्दा में से है, अलिफ मद्दा। फिर लाम साकिन आ गया तो हम इसको फिर दा को 6 काउंट्स खींचेंगे। दाल। इसी तरह जाल। रॉ जो है अलिफ मद्दा है, जा अलिफ मद्दा है, सीन भी मद के साथ है तो इसको भी 6 काउंट, शीन 6 काउंट। जहां जहां मद हमें नजर आ रही है उससे हम जब हुरूफ मुक़त्तात में इनमें से जो भी इस्तेमाल होंगे, सारे तो नहीं इस्तेमाल होंगे, तो उसको हम फिर 6 काउंट खींचेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसको देख लें कि वाव, वाव भी नहीं आता उसमें, हा, हमजा, या। तो ये सारी चीजें जहाँ पे हर्फ मद्दा है उसके बाद साकिन आ रहा है तो हमने इसको 6 काउंट्स खींचना है। ठीक है। तो उसके बाद वाली स्लाइड अगर हम देखें तो उसमें हमने, ये कुरान में है सारे, देखें कुरान में हुरूफ मुक़त्तात की तादाद। और उसमें जो है अलिफ लाम मीम, इसको अब हम कैसे खोलते हैं वो अब देखते हैं अगली उसमें। ठीक। हाँ, ये पहला हमने सूरह बकरा से ही जब हम शुरू करते हैं तो अलिफ लाम मीम है। अलिफ लाम मीम को हमने खोला तो पहले अलिफ लिख दिया, फिर लाम लिख दिया, फिर मीम लिख दिया। ठीक, अलग अलग। ये समझ में आ गई बात? अलिफ, लाम और मीम। अलिफ को तो हमने अलिफ पढ़ लिया, इसको आगे इसमें कोई कायदा नहीं लग रहा। अलिफ सीधा सीधा हर जगह जहाँ पे भी आएगा उसको हम अलिफ पढ़ेंगे। लाम में हमने देखा कि क्या है? अलिफ मद्दा है ला और मीम साकिन है, तो हम इसको कितना खींचेंगे? ला को 6 काउंट खींचेंगे, है ना। लाम, लाम। इसी तरह मीम में भी या साकिन, है ना, या मद्दा बन गया और मीम साकिन बन गया। तो इसको भी मी को हम 6 काउंट खींचेंगे। मी, अलिफ, लाम, मीम। लेकिन इसमें क्या हुआ? मीम साकिन है ना लाम का, और मीम का मीम है। अब ये दोनों जब मिल गए तो ये मिलके यहाँ पे इदगाम हो जाता है। ठीक है, यानी मर्ज हो जाते हैं, तो यहाँ पे तशदीद आ जाती है। हमने अलिफ लाम मीम जब हम लिखा हुआ देखते हैं तो यहाँ पे तशदीद है। ठीक है, ये साकिन मीम मीम की जेर के साथ वाले मीम में मिल जाता है और यहाँ पे तशदीद वाला मीम आ जाता है। तो अगर हम इसको अगली इसको देखें अलिफ लाम मीम को, जो हमने ये जो 4 तशदीद वाले हुरूफ मुक़त्तात है ना, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम सॉद और तासीम मीम। जहाँ जहाँ ये तशदीद वाली मीम आ रही है यहाँ पे हमने 3 काउंट का गुन्ना भी करना है। तो हम कैसे खींचेंगे इसको? कोई इसको पढ़ के मुझे सुनाए अगर कुछ समझ में आई है ये बात।
ये कंफ्यूजन है तो वो भी बताइए। कैसे ये शुरू पढ़े? से पढ़ना है लफ्ज, मैं पढ़ू? हाँ एक पढ़िए, हाँ पहला पढ़े। अलिफ लाम मीम। बिल्कुल सही। दूसरा? अलिफ लाम मीम रा। हम्म। अलिफ लाम मीम स्वाद। स्वाद नहीं, तो स्वाद। ठीक है, स्वाद। तो स्वाद। दाल, स्वाद। जब हमने स्वाद को खोला तो स्वाद। अलिफ ठीक है? लाम मीम स्वाद। हम्म। तसीन मीम। बिल्कुल सही। और कोई पढ़ेंगी? जी मैं पढ़ूं। बिल्कुल पढ़िए। अलिफ लाम मीम। अलिफ हम्म। लाम मीम रा। अलिफ हम्म। लाम मीम صاد हम्म। طاسيم ميم। सही, बिल्कुल सही। और कोई? आवाज नहीं आ रही। कोई पढ़ रहा है? नहीं, और कोई नहीं पढ़ रहा। अच्छा, कोई नहीं पढ़ रहा है, चलो ठीक है। तो इस तरह से हमने आज ये चार जो तजदीद वाले थे ना, ये हमने पढ़ना सीख लिए कि लाम के आखिर में मीम है और अगला मीम भी मीम से शुरू हो रहा है, तो वहां पे तजदीद वाला मीम आ गया। ठीक है, तो जहां पे भी तशदीद वाला मीम आएगा वहां पे हमें 3 का उनका गुन्ना करना है। अब ये चार जो हैं ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं कुरान में, जहाँ पे तशदीद आ रही है मीम के ऊपर, तो यहाँ पे हमने 3 का उनका गुन्ना करना है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, रा, अलिफ लाम मीम, صاد، طاسيم ميم। सही। तो माशाल्लाह सबने सही पढ़ लिया। अच्छा, अगले अगर हम पिछली वाली जहाँ पे पूरे हुरूफ मुक़त्तआत दिए हुए हैं, इसके आगे वाली स्लाइड कौन सी है आयशा, जरा दिखाइए। हाँ नहीं, जो जिसमें पूरे हुरूफ मुक़त्तआत है ना, हाँ ये है। अच्छा, इसमें देखें हामीम, जो तीसरा वाला ना हामीम, इसमें हा जो है अलिफ मद्दा है, और मीम क्या बना, हर्फी मुखफ़फ़। हर्फी मुखफ़फ़ क्यों बना? क्योंकि मी जो है वो क्या है, या मद्दा है, और मीम साकिन है। या मद्दा के बाद मीम साकिन आ गया तो ये हर्फी मुखफ़फ़ बन गया, 6 काउंट खींच दिया। हा मीम, हा मीम। ठीक है, और उसके बाद अच्छा, ये जो है ना, ये अभी हम लोगों ने क्योंकि ये वाले कवायद पूरी तरह से नून साकिन के बाद मीम आ जाए ना, नून साकिन के बाद मीम हमने किया था ना, इदगाम। इदगाम वाले जो हमने कवायद किए थे, नून साकिन नून तनवीन वाले, उसमें जब नून साकिन के बाद मीम आ गया था तो वहां तशदीद आ गई थी। तो ये तौसीन है और फिर मीम है, नून के बाद मीम आ गया तो वहां पे मीम मुशद्दद बन गया, वो इदगाम हो गया। तो हम नून नहीं पढ़ेंगे, सीन का नून नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसको सीधा मीम से मिला देंगे। तो वो अब आप देखें ना, तौसीन
और उसमें मीम पे तशदीद का निशान है, तो हम तौसीन नहीं पढ़ेंगे बल्कि इदगाम कर लेंगे। तौसीन मीम कैसे पढ़ेंगे? मैं पढ़ू? पढ़िए पढ़िए। तो तो सीन मीम। मीम मीम पे 3 काउंट का गुना करें। तो तो सीन मीम। हाँ नहीं, सीन को भी 6 काउंट खींचना है, ठीक है। तो सी मीम, सी 6 काउंट, मीम मुशद्दद 3 काउंट, फिर मीम पढ़े। तो सीन मीम। हाँ बिल्कुल। और कोई? मैं जी पढ़ू? मैं पढ़ूं। पढ़े बेटे बिल्कुल। मीम। बिल्कुल सही। तौसीन। आवाज गायब हो गई। तौसीन मीम। मीम पे रुके, मीम पे रुके। मीम मुशद्दद है ना, उस पे रुके। तौसीन मीम। तौसीन मीम। तौसीन मीम। हम्म, फिर अगला है अलिफ लाम मीम صاد। अलिफ लाम मीम साद। صاد। अब इसकी आप देखें ना, इसकी जो हिज्जे हैं सौद के, दाल साकिन है ना, तो दाल का कलकला तो हम करेंगे ना, सौद। ठीक है। अलिफ लाम मीम सौद पढ़े। मैं अलिफ पढ़ूं। लाम। कोई भी पढ़े। अलिफ लाम मीम स्वाद। अच्छा, लाम थोड़ा कम खींचा है और मीम मुशद्दद भी कम, थोड़ा सा काउंट कम है। फिर से करें एक दफा। अलिफ लाम मीम स्वाद। स्वाद नहीं, स्वाद के लिए होंठ गोल हो रहे हैं, जबकि होंठ गोल नहीं करना है, सिर्फ जबान की जड़ उठानी है। स्वाद स्वाद। अलिफ लाम मीम स्वाद। अलिफ लाम लाम मीम। ला अलिफ 6 काउंट, पहले इसको खींचेंगे, 6 काउंट खींचें, फिर मीम मुशद्दद का 3 काउंट का गुना करें। कैसे? ला। अलिफ हाँ। लाम मीम स्वाद। हम्म, अच्छा, अगला है। मैं पढ़ूं। हाँ पढ़े बिल्कुल पढ़े। अलिफ लाम मीम साद। बिल्कुल स्वाद स्वाद। बहुत ज्यादा दाल पे वो नहीं है, स्वाद। ठीक। अच्छा, ये 5 हर्फी आ गया। काफ, हा, या, आइन, सौद। ठीक। तो काफ तो हमने पढ़ा 6 काउंट का, फिर फा का हम, है ना, हम याद है। काफ, हवा का निकलना महसूस होना, काफ, हा, या। आइन क्या है? आइन क्या है? हर्फ मद्दा नहीं है ना, हर्फ लीन है। याद है हर्फ लीन, या साकिन से पहले जबर है। दो होते हैं हरूफ लीन, वाव और या। यानी वाव साकिन से पहले भी जबर हो तो हर्फ लीन है,
वाओलीन बनता है, और या साकिन से पहले जबर हो तो यालीन बनता है। तो इसको भी हम वैसे ही खींचेंगे। या आइन, फिर नून साकिन जो है उसके बाद सौद आ रहा है, तो इस पे हम इख्फा करते हैं। ये सारा मतलब जितने हमने कवायद पढ़े हैं ना, वो हमें याद रखने हैं ताकि हम अप्लाई कर सकें। नून साकिन का कवायद हमें याद होनी चाहिए। नून साकिन के बाद सौद आ रहा है, तो यहाँ पे मोटा इख्फा होगा। इख्फा करने के लिए, मोटा इख्फा करने के लिए जबान की जड़ को हम उठाएंगे। ठीक है। आई आई सौद, आई सौद, कैसे करेंगे? आइन स्वाद। हम्म। और कोई? आई, का हाँ पढ़ो। का हा या स्वाद। हाँ। अच्छा, आई जो है ना, ये पूरा 6 काउंट्स कर ले, फिर नून पे जब पहुंचेंगी ना, जब इख्फा के लिए जड़ उठाइए। आई स्वाद, आई स्वाद। अच्छा, ये जब जो ऐन को जब करेंगे तो हम ये सोच चलाते हुए 6 काउंट करेंगे। हाँ, जैसे हमने हर्फ मद्दा को चलाया ना, काफ काफ, इसी तरह आई आई सौद। ये ऐन और स्वाद के बीच में जो आवाज होगी वो थोड़ी सी वो इख्फा, हल्की करके फिर आएंगे। हाँ मतलब हल्की से, मतलब गुन्ना करेंगे ना, इख्फा जी करेंगे जी, ना, नून की आवाज को छुपाएंगे। लेकिन कैसे यहाँ छुपाएंगे? कंट्रोल हाँ, नहीं हो रहा। यही ये हाँ वाली यही चीज। प्रैक्टिस, इसी को प्रैक्टिस करनी है। आई आई सौद, नून का इख्फा करते करते जबान की जड़ को उठा दे। आई, आई पहले आई तो आई करें पूरा। आई आई आई, आई हाँ, आई 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 फिर, हाँ, आई, नून पूरा पढ़ने की बजाय आई आई सौद। आई आई हाँ स्वाद। बिल्कुल। अब अच्छा। आप प्रैक्टिस करेंगी तो आपका 6 काउंट्स भी आपका हो जाएगा, क्योंकि वो वो पता चल गया है, ट्रिक पता चल गई है ना। तो अब आप प्रैक्टिस कर करके इसको किसी कारी को सुने, ये मिशारी को सुने, या किसी की भी आप सुने, तो आपको फिर बार बार आप उनकी सुनेंगी ना, तो आपको अंदाजा होगा कि कितना खींचना है, कहाँ पे मोटी हो जाएगी आवाज। तो एक उसूल पता चल जाए तो फिर आप कई लोगों से वो चीज सुन के अपने आप को प्रैक्टिस में रख सकते हैं। ठीक है। अब अगला तो बहुत ही आसान है, 2 हर्फी है, तो हा। ठीक है ना। तो दो दो काउंट अलिफ मद्दा है, हा 2 काउंट अलिफ मद्दा है। तो हा, तो के लिए मोटा करेंगे, जबान की जड़ को उठाएंगे, और जबान की नोक कहाँ लगेगी? सनाया उलिया के जड़ में। तो तो हा, तो हा, हा कहाँ से अदा होता है? नेक्स्ट क्लास में हम ये जो पूरी हमारी वो है ना, अलिफ हुरूफुल हिजा, वो हम पढ़ेंगे, और साथ साथ ये डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से अदा होता है, ताकि हमें मखारिज भी पता चल जाए, और फिर उसकी सिफात भी थोड़ी थोड़ी हम उसके साथ साथ करते रहेंगे, ताकि ये हुरूफ हमें पक्की तरह से याद हो जाए। पौ मोटा है, जबान की जड़ उठेगी। हा बारीक है, हर्फ हल्की है। हा, पौ हा, पौ हा। ठीक। फिर अगला क्या है? कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू? पढ़िए। तो हा। अच्छा, आपका भी थोड़ा सा होठों को गोल करने वाली प्रैक्टिस आप कीजिए, कि नहीं करना है मुझे, होठों को गोल नहीं करना है।
त्वा की आवाज जब निकलती है ना, त्वा या ज़्वा, तो उसका मतलब है आपने होंठों को गोल कर लिया, आप होंठों को पकड़ लें अपने सीधा। है जी, फिर जबान की जड़ उठाएं, पौ, 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 हा, पौ, हा। अब पढ़े। तो हा हाँ, कितना अच्छा हो गया ना। फिर से पढ़े। तो हा हाँ बिल्कुल सही। अगला भी आप ही पढ़ लें। तो सा सीन, पूरा सीन सी पढ़ना है ना बस। हाँ, 6 सी काउंट। पौ, तो 2 काउंट, अलिफ मद्दा है, पौ, सीन, पौ, सीन। तो सीन तो को ज्यादा नहीं खींचेंगी, सिर्फ 2 काउंट्स खींचेंगी। पौ, तो सीन। सीन सही। नून का 1 काउंट का गुन्ना हो गया, सीन, सीन। सही। तो सीन बिल्कुल सही। और अगला कौन पढ़ेगा? पढ़िए। यासीन यासीन। फिर अगला आप ही पढ़िए। सो हाँ जोर से आवाज। दाल, दाल का कलकला कैसे? सौद हाँ, स्वाद, बिल्कुल सही। फिर अगला। और एक कोई और पढ़ेगा? जी मैं पढ़ूं। पढ़िए। ऑफ हाँ, नू फा का हमस होना चाहिए, ठीक है। कौ 6 का, और फा का हमस हो गया तो कौफ, कौफ, बिल्कुल सही। नून, नू 6 काउंट, और नून गुन्ना 1 काउंट, नून साकिन 1 काउंट। कैसे? नून बिल्कुल सही। अब है ये 5, इसका 5 हुरूफ वाला, इसको कैसे पढ़ेंगे? पहले हा मीम अलग है, ठीक है। हामीम फिर यहाँ पे भी आइन आ गया, वही वाला इख्फा आ गया, मोटा वाला, क्योंकि खौफ मोटा है। तो क्या करेंगे? पहला तो आसान है, आइन वाला तो आसान है, बारीक इख्फा है क्योंकि सीन बारीक है। लेकिन सीन को, जहाँ पे सीन का नून साकिन और आगे खौफ है, तो यहाँ पे मोटा इख्फा होगा। अब करके देखें आप। हामीम हम्म, आइन हम्म। और आवाज गायब हो जा रही बीच में, फिर से एक दफा। हामीम आइन सीन कॉफ। कोई और पढ़े? जी मैं पढ़ूं। बढ़िए। हामीम आइन सीन कॉफ। अच्छा, ये हा मीम में हा को मीम से नहीं मिलाना है। मीम जो है, हाँ हम्म, इसको हा बिल्कुल मीम, अलग। ये अलग पढ़ा जाएगा ना। अच्छा 1 काउंट का अलग ही हो जाएगा। 2 काउंट्स। हा। हाँ हम्म, ठीक है। हाँ 2 काउंट्स होने। मीम हम्म, आयन ये बारीक करें, सीन वही मैं कह रही थी ना, यहाँ पे बारीक किस्सा है। आइन, सीन, ऑफ। यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा। वो आयन ये वाली चीज। आइन, आइन, बस ये बारीक करना है, जबान की जड़ नहीं उठानी है आपने। बारीक इख्फा कैसे करते हैं? यही रख। हाँ, जबान की जड़ नीचे रहेगी। आइन, बस। नून के मखरज पे आयन जबान की टिप नहीं लगेगी, सीन के मखरज पे लगेगी, करीब जाएगी। आइन, सीन, ऑफ। आयन सीन ऑफ। हामीम, आइन, सीन, ऑफ। हाँ मीम
ऐन सीन ऑफ। हाँ, आखिर वाला तो सही हो गया। ये आइन और सीन वाला जो है ना, ये भी आप मोटा कर रही हैं। इसके लिए आप सीधा आराम से पढ़े, आइन आइन सीन, क्योंकि नून साकिन में बस सीन आ रहा है ना, तो ये मोटा जी इख्फा नहीं होगा, जड़ नहीं उठेगी आपकी। जड़ आपकी जबान की नीचे ही रहेगी। आइन 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 सीन कॉफ। सीन और के नून और कॉफ के लिए जब आप इख्फा करेंगी तब आप मोटा करेंगे, जो कि आप सही कर रही हैं, लेकिन बारीक इख्फा में वो इख्फा मोटा हो रहा है आपका। उसके लिए जबान के जड़ को आप नीचे रख के आइन सीन कॉफ। सही है। इसकी ऐन। प्रैक्टिस। हाँ, यहाँ एक चीज होती है ना, जो मतलब 1 सेकंड के लिए या आधा सेकंड के लिए ना थोड़ा सा नीचे रखना है, नीचे रखना है, बिल्कुल ये इसके आएगी लिए नीचे आवाज। ही रखना है। इसमें कोई मोटा हर्फ नहीं है ना, आइन में भी मोटा नहीं है, सीन में भी कोई मोटा ये नहीं असल में है। कंट्रोल नहीं हो पाता बाज नहीं। बिल्कुल। हाँ। मतलब याद होता है कि हाँ हम्म हमें यहाँ पे नीचे रखने की जरूरत है, लेकिन वो हम्म, मोटी हो जाती है। बस उसको आप 10-12 दफा पढ़ेंगी ना, तो खुद ही वो आपके जहन में एक चीज आ जाती है। प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसको बार बार करें, सुने। और जो और माहिर किस्म के जो हमारे माशाल्लाह जो कुरान हैं उनकी सुने, तो माशाल्लाह सब आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, ये हो गया। अब ऐसे करते हैं कि सूरह कौन सी है, सूरह फलक, उसको पढ़ लेते हैं एक दफा। ठीक है। इसमें कोई भी मुश्किल है तो आप मुझे मैसेज आप ग्रुप में कर सकते हैं, उसको अगली क्लास में फिर रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये बताएं, रॉ के लिए हमने जबान की पोजीशन क्या रखी थी ताकि सही रॉ अदा हो? जबान की पुश्त। ठीक है। एक ऊपर वाला हिस्सा होता है जो तालू की तरफ है, जो उसका नीचे वाला जो हिस्सा है ना जबान का, उसको आप मसूरों पे हिट करने की सूरत में अर अर अर, ताकि थोड़ी आवाज में वाइब्रेशन भी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन। यहाँ पे बारीक इख्फा आ गया, नून साकिन के बाद शीन आ गया ना, बारीक इख्फा है, यानी जबान की जड़ आपकी नीचे रहेगी। वमिन शर्रि मा, मिन शर्रि मा खलक। खा भी मोटा है, लाम बारीक है, फिर काफ मोटा है। खलक मा खलक। खा के लिए जब जबान की जड़ उठाएंगे, लाम के लिए नीचे कर देंगे, फिर काफ के लिए फिर ऊपर करेंगे। खलक। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ठीक है। कोई पढ़े इसको? मैं पढ़ूं? पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक अच्छा। मिन अ, शर, एक मिनट, आइन आइन की आवाज निकालें। औ औ कुल आऊज़ु बी बिरब्बिल रॉ। रॉ फलक, मोटा है ना, रॉ पे जबर है तो रॉ मोटा पढ़ेंगे। रब्बिल फलक। रब्बिल फलक रॉ मिन रब रब, इसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ना। रब्बिल फलक, रॉ रब, रब्बिल फलक। कुल हाँ, आऊज़ु बिरब्बिल फलक, फलक, काफ का कलकला करें। फलक। फलक हम्म
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن غاسق إذا وقب قن إذا وقب إذا مم. وقب ومن شر النفاثات في العقد رقد وعقد ومن حاسد إذا حسد. صحیح. کبیرہ پڑھیں گی یا نصرت پڑھیں گی؟ جی میں پڑھوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صحیح. اب شمائلہ یا جی نصرت میں کون پڑھوں. پڑھیں گی؟ جی. ہاں پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق اعوذ قل اعوذ برب ایک منٹ الفلق. ایک منٹ. آ الگ ہے او الگ ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں کو مکس نہیں کریں. آ الگ پڑھ لیں. قل جی قل اعو قل او قل او اعو قل او نکال. اعو قل میں لام میں قلقلہ نہیں ہے نا، قل کریں گے قل تو قلقلہ ہو رہا ہے. قل 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 ٹھیک ہے. توسط ہم نے پڑھا تھا نا، تھوڑی سی آواز چلتی ہے. قل اعوذ اعوذ قل اعوذ قل اعوذ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. حسد تین باریک ہے نا. حسد حسد. اچھا زال میں جو ہے نا تھوڑا سا چیٹی کی آواز آ رہی ہے. ایزا ہے، ایزا نہیں ہے. ایزا کہاں سے نکلے گا زال؟ جو آپ زبان کی ٹپ جو ہے اوپر والے دانت کنایا اولیا سے باہر تھوڑا سا نکالتے ہیں نا، تھوڑا سا باہر. ایزا 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 حسد. إذا حسد. اگر آپ نیچے والے دانت کے پیچھے لگائیں گی تو ایزا نکلے گا. ایزا زا ہے اور ہم پڑھے زال. ایزا صحیح ہے. تو یہ دونوں میں بہت یعنی بالکل الگ آوازیں، لیکن زبان آپ کی صحیح جگہ لگنی چاہیے. نیچے والے دانت پہ لگیں گی بیچ میں تو زا نکلے گا سیٹی والا، اور اوپر والے دانتوں سے تھوڑی باہر نکلے گی تو اذا نکلے گا بغیر سیٹی والا. صحیح ہے، دال زال والا. بس ایک اور کون پڑھے گا؟ نصرت پڑھیں گی ابھی؟ کون پڑھے گا؟
एक दफा पढ़े फिर उसके बाद टाइम हो गया। कोई पढ़ेंगे अब? चलें, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलें। अ, अगली क्लास में आप थोड़ा सा ये अपने इनको हुरूफुल हिजा जो है ना, इसको थोड़ा सा खुद से पढ़ के देखिएगा कि इसमें कौन सी सिफात हैं, कौन सा मोटा है, कौन सा बारीक है। तो फिर हम इसकी रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।